السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 13۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اپنا ریوالور سوٹ کیس سے جیب میں رکھ لوں۔ میں بستر سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اپنے کمرے کے ملحقہ غسل خانے میں آہٹ سی سنائی دی۔ میری نگاہیں غسل خانے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں کوئی غسل خانے میں آن چھپا تھا۔ وہ جس انداز سے دروازہ کھول رہا تھا اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنا ریوالور نکال سکوں۔ چند لمحوں کی اجلت درکار تھی، لیکن اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دروازہ خاصا کھل گیا اور پھر دروازے کے پیچھے سے چاند نمودار ہوا۔ یہ آسمان کا نہیں زمین کا تھا۔ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ اس کے جسم پر ایک بیش قیمت ریشمی گاؤن تھا جس پر کڑھائی کا کام کیا ہوا تھا اور اس میں اس کا شاداب بدن چمک رہا تھا۔ ہیلو رگھوناتھ، اس نے بستے ناز و ادا کمرے میں قدم رکھتے ہوئے شوخی سے کہا، اور اس کی آواز بڑی رسیلی تھی۔ آنکھیں بھی بہت خوبصورت تھی، ہونٹ بڑے رسیلے تھے، وہ سراپائے رس بھری تھی۔ تمہیں میرے آنے کی اطلاع تو مل گئی ہوگی۔ میں نے دانستہ تردید نہیں کی۔ چونکہ میں رگھوناتھ عرف موٹا کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، اس لیے مجھے ہر شخص موٹا ہی سمجھ رہا تھا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کمرہ لیا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ یہ چاند میرے کمرے میں طلوع کیا ہوا، کمرہ مہک اٹھا، میری ناک معطر ہو گئی، بڑی مسحور کن خوشبو تھی۔ میں نے اس کے خوبصورت اور سڈول داہنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ بکس دیکھا جو اس نے اس طرح سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اس میں ہیرے بھرے ہوئے ہوں۔ اس قسم کے بکس میں عورتیں اپنا لباس اور میک اپ کی لوازمات رکھتی ہیں۔ پھر اس نے بڑی بے تکلفی سے اس بکس کو بستر پر رکھ دیا۔ اب وہ شب خوابی کے بین لباس میں تھی اور اس نے مجھے ورزیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پروفیسر نارنگ نے تمہارا دل بہلانے، ہر طرح کی سیوا کرنے اور کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ پروفیسر نارنگ، میں نے چونک کر اسے اوپر سے نیچے سے گہری نظروں سے دیکھا۔ بڑا خوبصورت کھلونا تھا، پسند آیا تھا۔ پروفیسر نارنگ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بڑا باذوق اور رنگین مزاج بھی معلوم ہوتا تھا۔ اسے مرد کی فطرت، مزاج کی رنگینی، ذوق اور کمزوری کے بارے میں علم تھا، خصوصاً رگھوناتھ عرف موٹا کے بارے میں۔ موٹا شاید ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا ہوگا، اور پھر یہ میں پارا ایسی تھی کہ اسے ناپسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کی کس چیز کی تعریف کروں؟ سرو قد ہونے کے باعث اس کے چھریرے تناسب بدن کی دلکشی اور رعنائیاں بے نیام تلوار کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ پروفیسر نارنگ، اور میں نے چونک کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ نگاہیں چہرے سے بھٹک کر اس کے بدن کا احاطہ کر رہی تھی۔ جی پروفیسر نارنگ۔ اس کی رسیلی آواز کھنک گئی اور اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اور وہ جی، اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ جب تک وہ تمہیں ملاقات کا وقت نہ دے اور اس وقت تک میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں، تمہارا دل بہلاؤں، تمہاری جو بھی خواہش ہو پوری کروں، کسی بات سے انکار نہ کروں، تمہیں لمحے کے لیے بھی بور نہ ہونے دوں۔ ویری گڈ، میں خوش ہو گیا۔ پروفیسر نارنگ کو میرا کتنا خیال ہے، اور اس نے میرے لیے کیسا اور رنگین کھلونا بھیجا ہے۔ اور میں اسے باتیں کرتے ہوئے ذہن پر بہت دور دیا کہ پروفیسر نارنگ کون ہے، کون ہو سکتا ہے، اور مجھے بالکل بھی یاد نہ آ سکا کہ زیر زمین دنیا میں اس نام کی کوئی شخصیت بھی موجود ہے۔ میں تقریباً ہر مافیا سے واقف تھا۔ ہندوستان بہت بڑا تھا اور اس میں پورے 22 صوبے تھے۔ میں تمام صوبے کے مافیاؤں کو نہیں جانتا، مگر بھی بنگال اور آسام میں بھی موجود تھے، شاید وہاں ہو، لیکن کبھی وہاں کے بارے میں جاننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، نہ میں نے کبھی جاننے کی کوئی کوشش کی تھی۔ پھر میں نے سوچنا بند کر دیا، آج نہیں تو کل معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر میں اس کے ہیجان خیز سراپے میں ڈوب گیا جو قیامت ڈھا رہا تھا، اور وہ اس وقت ایک کھلی کتاب کی مانند تھی۔
आप जो सफ़ा पढ़ना चाहें पढ़ लें। हर सत्र और पैराग्राफ सामने था। क्या तुम मुझे सज़ा दे रहे हो? और उसने कदरे तेजी से कहा, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी प्रोफेसर नारंग ने तुम्हारी। मैं और तुम्हें सज़ा दूं? मैंने तेज़ी से उसकी बात काटी। मेरी क्या मजाल, उसने तुम्हें किस बात की सज़ा दी? ये सज़ा नहीं तो और क्या है कि तुमने मुझे बैठने तक के लिए तक नहीं कहा। और फिर तेज़ लहजे में बोली, मैं बुक तक खड़ी हूँ इस तरह। ओह आई एम सॉरी, मैंने उससे माजरत करते हुए कहा। दरअसल इसमें मेरा नहीं तुम्हारा कसूर है सरासर। मेरा कसूर? वो कैसे? वो चौंकी। उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया और मैंने कहा, क्या मेरा कसूर हो तो बताओ। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम बला की हसीन हो। मैं मुस्कुराया। तुम्हारे हुस्न शबाब के जादू ने मुझे खुद फरामोश कर दिया था। अब बैठ भी जाओ। और तुम्हें उसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि तुम बिला इजाज़त कमरे में आई हो। मैंने सोचा कि उससे दरियाफ़त करूं कि प्रोफेसर नारंग का जोग्राफिया क्या है, मौसूफ का जद्द अमजद क्या है, वो क्या बेचता है। और फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि कला मैं देवा कुमार नहीं बल्कि रघुनाथ उर्फ मोटा हूँ। मेरे सवाल पर वो मशकूक हो जाएगी और फिर वो मेरे कमरे से ठेंगा तक दिखाकर निकल जाएगी और मैं उस बुत गुमाज को निकल जाने देना ही नहीं चाहता था। और एक तो उससे गैर महसूस अंदाज से कुछ मालूमात हासिल करनी थी। गो कि मेरे जहन ने उसके जहन से बहुत कुछ मालूम कर लिया था और फिर उसके साथ रात रंगीन करना थी। ऐसी काफरा का हुस्न और कुर्ब, और मैं उससे महरूम होना नहीं चाहता था। वो मेहरबान होने आई थी और बड़ी नया फ़न भी मालूम होती थी। उस अमरीकी स्याह लड़की एथर की तरह। ऐसी लड़कियां किस्मत से ही मिलती हैं। मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या वाकई प्रोफेसर नारंग ने मेरी सेवा की घर से भेजा है? मैंने दरियाफ़त किया। हाँ। उसने खुशनुमा सर हिला दिया। फिर शौक लहजे में चह कर बोली, यकीन नहीं आया तो लिख कर दे दूँ। उसे मेरा कितना ख्याल है। प्रोफेसर जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उसका कम है। और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुझे तीखी नज़रों से देखती और मुस्कुराती रही। वो शोला मुजस्सम बनी हुई थी। मैं झुलस रहा था। भला ये कोई पूछने की बात है? वो शगुफ्तगी से बोली, मैं तुम्हारी बांदी हूँ, दासी हूँ, सेवा करने आई हूँ। जो पिलाओगे वो पी लूँगी। रात एथर जो शैम्पियन की बोतल और गिलास लाई थी और उसमें से निफस शैम्पियन थी वो छोड़ गई थी। मैंने अलमारी में से बोतल और गिलास धोकर रख दिए और मैंने 2 गिलास तैयार करके एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। और जिस वक्त उसने मेरे हाथ से गिलास लिया मेरी नज़र उसकी उंगली पर पड़ी और जिसमें एक बड़ी अंगूठी और उस पर अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिखा हुआ था। अंगूठी बहुत ही खूबसूरत और कीमती भी मालूम होती थी। ये खालस सोने की थी, किसी और धात की नहीं। और मैंने अंगूठी को गौर से देखते हुए पूछा, बेबी क्या तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगी? मुझे तुम्हारा नाम बताया नहीं गया। मेरा नाम शबीता मुखर्जी है। उसने मुझे चमकती आंखों से देखा, फिर ज़ारे लब मुस्कुरा दी। तुम मुझे शमी कहकर पुकार सकते हो। जिस वक्त उसने अपना नाम बताया था तभी मैंने अपना गिलास खाली कर दिया था और फिर उसे दोबारा भरकर हलक से उतार लिया। मुफ्त की जो थी। शमी ने 2-3 घूंट लेने के बाद पूछा, क्या तुम किसी तफरीह के मूड में हो? तुम्हें मौसीकी वगैरह से दिलचस्पी तो होगी। इस वक्त तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ तुम मेरी दिलचस्पी हो। तुम्हारा हुस्न और शबाब और तफरीह का महवर है। मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हें मौसीकी पसंद है तो ये समझो कि मुझे भी जुनून की हद तक पसंद है। मौसीकी को कौन पसंद नहीं करता? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा दमक उठा और उसने मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत तभी नहीं की और उसने टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। मेरे लिए तो वह खुद मौसीकी, नगमा और आहंग थी। कमरे की खामोश फिजा में लतीफ़ धुनें बिखरने लगी और उसका जिस्म थरकने लगा। मैंने थिरकना बंद किया और फिर मेरे करीब आकर पूछा, रक्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब देने से पहले मेज़ के पास जाकर गिलास रखा और उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, नेक ख्याल है। क्यों? पूनम ने अपने नामनासब शब ख्वाबी के लिबास को और ऊंचा उठा लिया। फिर मेरे पास आई। फिर देखते ही देखते महजान खेज रक्स शुरू हो गया। ये रक्स कम था और उसे किसी सूरत से रक्स का नाम नहीं दिया जा सकता था। वो मुझ पर नछावर हुई जा रही थी, बल खा खा कर, तिरछी हो होकर थिरक रही थी और उसके बदन में बड़ा रच था, गुदाज था, बिजलियां भरी हुई थी। वो मुझ पर नछावर हुई जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि किसी भी समय
वो अपना शब ख्वाबी का लिबास उतार फेंकेगी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दिल में प्रोफेसर नारंग का शुक्रिया अदा किया कि जिसने मेरी तफरी तबाह का ख़ास ख्याल किया और उसने एक ऐसी लड़की का मेरे लिए इंतखाब और इंतज़ाम या कि जो शोला मुजस्सम थी उसमें कोई शर्म व हिजाब ना था। ये दौर ही ऐसा था कि शर्म और हिजाब उठता जा रहा था। औरत का बस नहीं चलता था कि वरना वो बेलिबास घर से निकले। रक्स में इतनी जाज़बियत आ गई कि बात रक्स से भी आगे बढ़ती जा रही थी। हम दोनों हर चीज़ से बेनियाज हो गए। फिर एकदम से रंग में भंग पड़ गया। मैं एक बात भूल गया कि कोई और होता तो वो भी भूल जाता। पूनम थी ही ऐसी लड़की। ऐसा लगा कि भूचाल सा आ गया। धड़ाम से दरवाज़ा खुला और वो खबीस बगैर दस्तक और तला के दंदनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसका उस बदतमीजी से आना सख्त नागवार लगा, बल्कि जहर। मेरे जी में आया कि रिवाल्वर निकालकर उस हरामजादे की खोपड़ी में सुराख कर दूं। उस शोर को क्लाइमैक्स के वक्त ही आना था और कुछ देर बाद आता तो क्या बिगड़ता। मैं खून के घूंट पी गया। पूनम के बशरे से ज़ाहिर था कि उसे भी जहर लगा और उसने मुझे देखते ही कहा, रघुनाथ, हैरत की बात है कि मेरे कहने के बावजूद तुमने अभी तक लिबास तब्दील नहीं किया और उस लड़की के साथ मौज उड़ा रहे हो। हाँ, मैंने लिबास तब्दील नहीं किया और ना करूँगा। तुम कौन होते हो दौंस देने और हुक्म चलाने वाले? मैंने बिगड़ कर बरहमी से कहा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सुना तुमने? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और उसका खौफनाक चेहरा और मकरू हो गया। लम्हे के लिए उसे यकीन नहीं आया कि मैं ऐसा खरा जवाब दे सकता हूँ और उसकी सूरत जैसी छोटी छोटी आंखों में चिंगारियों सी भर गई और वह तुरश रोई से बोला, मैं तुम्हें 1 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ और फिर भी तुमने लिबास तब्दील नहीं किया तो मैं तुम्हें इस हालत में उठाकर प्रोफेसर नारंग के पास ले जाऊँगा। प्रोफेसर नारंग को ये बात पसंद नहीं आएगी कि तुम इस हैसियत में उससे मिलने आए। पूनम वीटर की बात सुनकर बड़े ज़ोर से चौंकी, क्योंकि उसने प्रोफेसर का नारंग का नाम सुन लिया था। और फिर उसने मुझे समझाने के अंदाज में कहा, तुम्हें फ़ौरन तैयार होकर चल देना चाहिए। प्रोफेसर नारंग को तुम जानते हो, वो बहुत मसरूफ़ आदमी है और उसके पास वक्त बहुत कम होता है। मैं गुस्से की हालत में जामे से बाहर हो गया था और पूनम ने बड़े प्यार भरे अंदाज से मेरे गुस्से को सर्द किया और मुझे मेरे चेहरे पर झुक कर बनाया भी था। और मैंने बिस्तर से उसका गौन उठाया ताकि उसे पहनने में मदद दे सकूं। मैंने जब गौन उठाया तो उसका बक्स जो गौन के नीचे था न जाने कैसे बिस्तर से निकलकर फर्श पर गिर गया और पूनम ने जो ये देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो हज़ियानी लहजे में चीखते हुए बोली, तुम कैसे बेपरवाह आदमी हो और तुमने मेरे बक्स का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें ज़रा भी किसी बात का एहसास नहीं। आई एम सॉरी पूनम डार्लिंग। और मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए खजालत से कहा, प्लीज़ जान, तुम नाराज़ ना होना। पूनम की त्योरियों पर बल पड़ गए। चेहरा तमतमा रहा था और उसे यकायक न जाने क्या ख्याल आया और उसने मेरे हाथ से गौन लिया और फर्श से बक्स उठाया और इसमें हालत में कमरे से निकल गई। उसने गौन पहनने की जहमत नहीं की और ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और उस वीटर के आने से पहले वो बहुत खुश और सरशार थी और उसने मेरी जज्बाती कफ़ियत और मनमानियों को बड़ी गर्मजोशी, वालहानापन और खुद सपुर्दी से कबूल किया था। किसी हरकत पर अर्ज नहीं किया था और उसका बदला हुआ रवैया मुअम्मा बन गया था। वीटर कमरे से बाहर नहीं गया था और वह वहीं जमकर जैसे चट्टान बन गया और उसके चेहरे पर सफाकी थी, आंखें लाल हो रही थी। रघुनाथ, उसने करख्त आवाज़ में वार्निंग दी, सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। सुना तुमने? और मैंने फ़ौरन ही पतलून पहनी, बगैर जराबों के जूते पहनने लगा और उस वीटर ने मुझे तस्मे बांधने भी नहीं दिए। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे से बाहर ले आया और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। मैंने राहदारी में पूनम को देखा और वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। जाने कहाँ चली गई और गधे के सर के सींग की तरह गायब थी। रघुनाथ, मुझे अंदाज़ा न था कि तुम इस कदर अहमक हो, उसने मुझसे कहा, और तुमने वक्त ज़ाया करके अच्छा नहीं किया। मुझे अहमक मत समझो, मैंने तेज़ लहजे में कहा, और उसमें मेरा कोई दोष नहीं। बेहतर है कि तुम मुझे दोष ना दो। इसमें तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा दोष है? वो बुरी तरह चिढ़ सा गया। सारा दोष तुम्हारा है और तुम उसके ज़िम्मेदार हो। सारा दोष पूनम का है। और मैंने उससे कहा, वो हसीन बला थी और तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आंखें बंद कर लेते और तुम मुझे इधर 15 मिनट देकर गए थे। ये लड़की ऐसी थी कि 15 घंटे भी कोई और वक़्त और मोहलत ना थी, इतना तो वक़्त देते।
اس کا بات کا کم ہے کہ تم نے پھسلنے نہیں دیا، میں نے کہا، اور تم پتھر دل ہو، احساسات اور جذباتیت کا کوئی احساس نہیں۔ ویٹر نے میری بات سن کر مجھے خشمگین نظروں سے گھورا۔ وہ مجھے اس سمت کشا لے جا رہا تھا جہاں ہوٹل سویٹ ہیون تھا۔ یہ ہوٹل چنائی میں سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ پر آسائش ہوٹل مانا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل بھی ساحل سمندر کے کنارے واقع ہے۔ یہ اطالوی طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھا اور اسے دیکھنے لوگ آتے تھے۔ اس ہوٹل میں نہ صرف چنائی بلکہ کولکتہ اور بالی ووڈ کی اداکارائیں اور اداکار، صنعت کار اور تاجر بھی اپنے اپنے محبوباؤں، آشناؤں اور بدن کے خریدار آ کر راتیں کالی کرتے تھے۔ خصوصاً اداکارائیں، اور ان کی راتیں کالی ہوتی تھی۔ وہ اپنی شہرت اور جسم کی کشش اور جوانی، حسن و شباب سے خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ فلموں اور رسالوں میں ان کے ہیجان خیز سراپا رقص اور نیم عریاں تصویروں سے ان کی مانگ بڑھ جاتی۔ کالا دھن والوں کی کمی نہیں رہی اور اس ہوٹل میں وقت گزاری ہوتی تھی۔ میری نظر سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز پر پڑی جس پر فارچون لکھا ہوا تھا۔ نام دور سے ہی دکھائی دیتا تھا اور مجھے یہ نام مانوس سا لگا، لیکن اس وقت اس لیے یاد نہیں رہا کہ اس وقت ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور کھوپڑی بھی پک رہی تھی، کیونکہ اس ویٹر نے آ کر عین وقت پر بدمزگی پیدا کر دی۔ پونم نے لمحات میں جو رنگینی پیدا کر دی اور ہم جو جوانی کے جنگل میں دور تک چلے جا رہے تھے، بلا خوف، بے دھڑک اور بے جھجک اور کسی بات کا ڈر کیے، وہ اس کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ غصہ تو آنا تھا۔ وہ مجھے ہوٹل کے اندر لے گیا اور اس ہوٹل میں بہت سارے ہال تھے جس میں تقریبات منعقد ہوتے تھے، اور اس نے ایک ہال کے دروازے پر رک کر ایک لمحے کے لیے اپنے سانسیں درست کیں۔ پھر اس نے ہال کے دروازے کا ہینڈل کا ٹوپ پکڑ کر گھمانے کی بجائے کوئی 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی۔ اس نے 3 مرتبہ مخصوص انداز سے دستک دی تھی۔ اندر خاموشی سی لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا تو ہم دونوں اندر گھس گئے۔ ہمارے گھستے ہی دروازے کو بند کر کے اندر سے متقفل کر دیا گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض ہال تھا اور اس کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے، مگر میری نگاہ سب سے پہلے اس شخص کی جانب اٹھی جو کرسی صدارت پر بڑے پروقار اور روب کے انداز سے کسی راجہ مہاراجہ کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا روب اور دبدبہ وہاں موجود لوگوں پر طاری تھا۔ اس کی سی شخصیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، اور مجھے اس شخص کو پہچاننے میں پل بھر میں دیر نہیں لگی۔ یہی شخص پروفیسر نارنگ تھا، لیکن وہ کسی اور نام سے بھی مشہور تھا اور اس کا ایک نام نہیں تھا۔ وہ مافیا تھا اور اسے لوگ غائبانہ طور پر گوریلا کے نام سے موسوم کرتے تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے اسے کوئی گوریلا کہہ کر مخاطب کر سکے، اور اس کے نام سے ہی ڈرتے اور خوف کھاتے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دل و دماغ میں غم و غصے اور نفرت کی شدید لہر اٹھی تھی اور رگوں میں لہو ابلنے لگا، کیونکہ یہ جرائم کی دنیا کا سب سے ظالم، سفاک اور اونچا بدماش تھا، اپنے گروہ کا سرغنہ تھا۔ لوگ تو بڑے سے بڑے خطرناک اور پیشہ ور بدماش، اور پولیس بھی اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، اور میں اسے خواب کسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ شخص میری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ موجودہ حالات میں اس کے یہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ہندوستان سے کبھی کا روپوش ہو چکا تھا۔ ہندوستانی حکومت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اور نہ اس لیے کہ اب تک ڈال سکی تھی، اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور پھر وہ بڑا با اثر، بارسوخ اور طاقتور شخص تھا، اور اس نے حساس اداروں اور پولیس کے محکموں کو بھی خریدا ہوا تھا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے پونم جیسی لڑکیاں شراب اور موٹی رقموں سے کام لیتا تھا، اس لیے سب اس کے زیر اثر تھے، اور اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں گشت کر رہی تھی کہ وہ کبھی ہندوستان نہیں آئے گا۔ افواہیں ہی ہوتی ہیں، اور ان میں بہت کم صداقت ہوتی ہے۔ وہ مجھے نظروں کے سامنے فرشتہ اجل کی طرح نظر آیا۔ وہ مجھ پر جیسے ہنس رہا تھا جیسے کہہ رہا ہے کہ برے پھنسے مسٹر دیوا کمار۔ پھر میری نگاہوں نے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سرسری انداز سے دیکھا۔ پورا حال نہ صرف ہندوستان کے بلکہ دنیا کے جرائم پیشہ اور پیشہ ور قاتلوں کی تنظیموں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جگہ کسی بھی سراغ رساں کے لیے پھانسی کا گھاٹ تھا، اور اس کے باوجود میں بے حد پرسکون تھا۔ میرے حال میں داخل ہوتے ہی ایک بنبناہٹ اور سنسنی پھیل گئی۔ یہ سارے تقریباً مجھے جس طرح جانتے اور پہچانتے تھے، شاید اپنی اولاد کو بھی، اور وہ ایسے کہ میرے کارنامے
हिंदुस्तान के तमाम अखबारात में तस्वीर के साथ शाया होते रहे थे। एक तूफान सा उमड़ आया। कुछ बदमाश चौंक कर उठ खड़े हुए। वो एक बदमाश मेरी तरफ जारहाना अंदाज से बढ़े। प्रोफेसर नागन ये सब कुछ बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहा था और उसकी निगाहें मुझ पर मरकूज थीं। उसके चेहरे और आंखों से इसके दिल के तासरात ज़ाहिर न थे। वो बड़ा गहरा शख्स था, रख रखाव भी था, ज़ाहिर था कि सरगना था। चंद लम्हों तक शोर शराबा होता रहा और जब प्रोफेसर नारंग ने अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया और खामोश रहने का इशारा किया तो एकदम से शोर शराबे ने दम तोड़ दिया। पूरे माहौल पर एक ऐसा बेकरार सन्नाटा तारी हो गया जैसे कोई मौजूद ना हो, ये खाली पड़ा हुआ हो। और तुम रघुनाथ उर्फ मोटा तो नहीं? उस गहरी खामोशी में प्रोफेसर नारंग की भारी आवाज़ गूंजी और मेरी तरफ जो बदमाश बढ़ रहे थे वो रुक से गए। रघुनाथ उर्फ मोटा, मैंने अनजान बनकर हैरत से अपनी पलकें झपकाई। ये कौन बला है और तुम कौन हो? मेरी जुबान से बिला इरादा निकल गया। सुनो मिस्टर, प्रोफेसर नारंग ने तीखे लहजे में कहा, ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। ये बताओ कि तुम मोटा के कमरे में क्या कर रहे थे? मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि मौत के दहाने पर खड़ा हुआ हूँ। एक नहीं, बहुत सारे कातिल मौजूद हैं। मेरा पता साफ करके मेरी लाश ऐसी गायब करेंगे कि उसका पता कभी भी नहीं चल सकेगा। मैं अपनी बदहवासी और ज़रा सी भी हमाकत पर अपनी जान से हाथ धो सकता हूँ, लिहाजा मुझे बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी। वो माफिया था। दूसरी बात यह थी कि मैं अपनी मख्फी कुव्वतों से अभी काम लेना नहीं चाहता था। उसे और किसी कातिल की मजाल नहीं थी कि वह मुझे मौत की नींद सुला दे। और मैंने बड़े मजबूत लहजे में बेखौफी से कहा, रघुनाथ उर्फ मोटा की तकरार मेरी समझ से बाहर है। तुम मुझसे एक ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसकी तो मैंने शक्ल तक नहीं देखी और तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। मैं अपनी बात ख़त्म करके बेखौफी से प्रोफेसर नारंग की तरफ बढ़ा तो हाजरीन में से कई हाथों को जेबों में जाते देखा और उन्होंने दूसरे लम्हे रिवाल्वर निकाल लिए थे। मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं ये बात जानता था कि वह अपने बास के हुक्म के बगैर गोली नहीं चला सकते। वो इस बात को पसंद नहीं कर सकता था कि होटल में कत्ल की वारदात हो। मैं उनके हाथों में असला देखकर बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुआ। दो एक ने मेरी राह में हायल होने की कोशिश की तो उन्हें उनके बाद प्रोफेसर नारंग ने इशारे से रोक दिया और मैंने उसके करीब पहुंचकर कदरे तेज लहजे में कहा, मिस्टर, तुम्हें इस बात का पूछने का कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम कौन से कमरे में और किस लिए ठहरे हो। मुझे क्या मालूम था कि उस कमरे में ठहरना था। ये कमरा मुझे होटल वालों ने दिया है। मैं किस नाम से ठहरा हूँ तुम मालूम कर सकते हो। मैंने प्रोफेसर नारंग के बशरे से महसूस किया कि उसे मेरी बात और लहजा सख्त नागवार लगा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और मैंने जो कुछ कहा था वो गलत ना था। उसने खुद पर काबू पाने के बाद मेरी पुश्त पर किसी को इशारा किया और मैंने फौरन ही घूम कर देखा तो मेरी निगाह राजा पर पड़ी जो एक तरफ खामोशी से खड़ा था। और मैं एन से कहा, राजा, ये शख्स कौन है और मुझसे बेसुरापा किस्म के मामलात किस लिए किए जा रहे हैं? ये क्या तमाशा है? राजा को मैंने पहली बार बेहद संजीदा पाया और उसे शायद फौरन ही हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा हो गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वो प्रोफेसर नारंग के दाएं जानब और कदरे करीब हो गया था और उसने मुझसे बात करने की बजाय प्रोफेसर नारंग को मुखातब किया। इसका नाम देवा कुमार है और ये मुंबई का प्राइवेट सुरागरसा है। ये कभी कभी यानी साल 2 साल में तफरीह की गरज से आ जाता है और उसे यहाँ की सांवली लड़कियाँ और शराब बहुत पसंद है। आजकल महाशटर हुकूमत ने शराब पर सख्त पाबंदी आयद की हुई है, इसलिए वो आता है। और मैं आज सुबह भी उससे स्विमिंग पूल पर मिल चुका हूँ जहाँ वो तैर और नहा रहा था। फिर उसने तवक्कुफ करके मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर मुझे बड़ी संजीदगी से मुखातब किया, देखो मिस्टर देवा कुमार, प्रोफेसर नारंग तुमसे जो कुछ दरियाफ्त करें और उसका सही जवाब दें ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए और उन्हें तुम्हारे बारे में जो शक हो गया है वो उसे दूर करना चाहते हैं। राजा जैसे मुजरम ने मेरी हमायत में बेखौफी से कहकर उसने मेरा दिल जीत लिया था और मेरे दिल में उसके लिए जगह बन गई। मुझे सच कहने में कोई याद नहीं। मैंने उसे जवाब देकर प्रोफेसर नारंग की तरफ देखा, आप क्या तसल्ली करना चाहते हैं जनाब?
प्रोफेसर नारंग गहरी खामोशी और तनकीदी नज़रों से मुझे देखे जा रहा था और वो उन लोगों में से था जो अपना सवाल दोहराते नहीं। और मैंने उसे खामोश पाकर सोचा कि क्यों ना खुद ही बता दूं, और फिर मैंने उसे ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया। मुझसे जिस कमरे के बारे में दरियाफ्त किया गया है वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं कल ही इस शहर में आया हूँ और मैंने इस ख्याल से कमरा बुक नहीं कराया कि मिल जाएगा, और मैं जब भी आया मुझे कमरा मिल गया। लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। इत्तेफाक से कमरा भी खाली नहीं था, डबल बेड पर भी खाली नहीं था। अलबत्ता एक शख्स ने कमरा बुक कराया हुआ था, वो किसी वजह से नहीं आया। लिहाजा मैंने डिस्क गर्ल को 100 रुपये रिश्वत देकर और उसकी मिन्नत समाजत करके कमरा ले लिया। इतनी सी बात है। मेरी ये बात सुनते ही फौरन ही एक शख्स जो बदमाश था हाल से निकल गया। वो शायद मेरी बात की तस्दीक करने गया था। मुझे किसी बात का डर और खौफ नहीं था और मैंने गलत नहीं कहा था। और वो डेस्क गर्ल आज भी ड्यूटी पर मौजूद थी। मैंने उसे ताकीद की हुई थी कि ये बात वो किसी को ना बताए कि मैं किसी और के कमरे से उस कमरे में मुतकफल हुआ हूँ। उसने वादा कर लिया था। प्रोफेसर नारंग को जैसे मेरी बात का यकीन आ गया था और उसके चेहरे के तासरात बदल गए और उसने नरम लहजे में मुझसे कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम बताओ कि वीटर के हमरा बहसीयत रघुनाथ के यहाँ किस लिए आए हो। मैंने जवाब देने से पहले उस समय देखा जहाँ वीटर मुअद्दब अंदाज से खामोश खड़ा हुआ था, और फिर मैंने प्रोफेसर नारंग से कहा, इसके बाद का जवाब तो वीटर ही दे सकता है। एक तो ये शख्स मेरी इजाज़त के बगैर कमरे में दंदनाता हुआ घुस आया। वो मुझे लिबास तब्दील करने का हुक्म देकर चला गया और उसने 20 मिनट की मोहलत दी। उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि वो मुझे कहाँ ले जाकर जाना चाहता है, और उसने बाकरना भी गवारा नहीं किया, नाम ना पूछा, और जिस तेज़ी से गया था उसी तेज़ी से वापस चला गया। मैं स्वीटर के आने से चंद लम्हे कबल कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हुआ, और उसके जाने के चंद लम्हों के बाद मेरे कमरे के मुल्हिक वाशरूम का दरवाज़ा खुला और उसमें एक बहुत हसीन व जमील और नौजवान औरत कमरे में आई। वो जाने कब से मौजूद थी और उसने मुझे रघुनाथ कहकर मुखातब किया और कहा कि वो प्रोफेसर नारंग के कहने पर हर तरह की सेवा और खुश करने के लिए आई है, और वो उस हालत और ऐसे लिबास में थी कि मर्द बहक जाए। उसके रक्स और कुर्ब ने मुझे दावत गुनाह दिया और मैं उस फितने कुर्बत में दीवानगी की हद तक पहुंचा था कि ये वीटर फिर कमरे में तूफान बनकर घुसा। ये शख्स आओ ना ताओ मुझे जबरो ज्यादती से कुर्बानी के जानवर की तरह खींचता ले आया, और ज़रा भी तमीज़ और शराफत नहीं थी इसमें। इसने मुझे जूते के तस्मे बांधने और कोई बात कहने और तरवीद करने की मोहलत तक नहीं दी। ये मेरा नाम रघुनाथ नहीं है। मेरे जूतों पर एक नज़र डालें और इससे मेरी सच्चाई का अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे जूते इस बात की गवाही देंगे। मैंने तवक्कुफ़ करके अपने जूते प्रोफेसर नारंग को दिखाए और फिर तमाम हाज़रीन को। फिर मैंने पूछा कि मैं अब तक ये बात नहीं जान सका हूँ कि मुझे शक की नज़रों से क्यों देखा जा रहा है और मुझ पर जीरा किस लिए की जा रही है। मेरा बयान सुनने के बाद प्रोफेसर नारंग ने उसे कहर आलूद नज़रों से घूरा और फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, मिस्टर देवा कुमार, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें गलत फहमी की वजह से तकलीफ़ पहुंची। असल बात यह है कि इलेक्शन के लिए एक कन्वेंशन बुला रहे हैं और ज़ाहिर है कि पार्टी सीक्रेट को दूसरों से महफूज रखा जाता है, इसलिए हम उस कन्वेंशन की हर कार्रवाई को महफूज रखते हैं। लिहाजा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तो अच्छा है। देवा कुमार, राजा ने कहा। प्रोफेसर नारंग की गलतफहमी दूर हो गई और उन्होंने तुमसे वजाहत भी कर दी। मैंने जो आप गुस्ल का ख्याल नहीं किया और उसके लिए माफ़ी का ख्वासगार हूँ। और मैंने प्रोफेसर नारंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने नदामत का इजहार करके उसे यह तासुर दिया था कि इस बात के वो सदक दिल से सच तस्लीम कर लिया है और इस बात से वह खुश हो गया। जो बदमाश मेरी बात की तस्दीक करने गया था और वो इस दौरान वापस आ गया। उसने शाहद हाल से निकलकर मोबाइल या फ़ोन पर डेस्क गर्ल से रब्ता किया होगा या फिर तेज़ी से लपक गया होगा। मेरा होटल दूर ही कितना था, चंद कदम पर वाक़या था। उसने प्रोफेसर नारंग को मखसूस अंदाज से इशारा किया था और जिससे साफ ज़ाहिर था कि वह मेरे ही मुतल्लक था, और उस इशारे के जवाब में प्रोफेसर नारंग ने असबाती अंदाज से सर हिला दिया, गोया उस बदमाश ने मेरे बयान की तस्दीक कर दी। गलतफहमी और इजलतबाजी की वजह से जिस ज़हनी कोफत, तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ मिस्टर देवा कुमार। तुमसे एक गुजारिश है कि जब तक हमारा कन्वेंशन ख़त्म नहीं हो जाता तुम अपने कमरे से नहीं निकलोगे। मैंने लम्हे के लिए सोचा कि इससे कहूँ कि मैं एक शर्त पर
गुजारिश को कबूल कर सकता हूँ कि वो पूनम को मेरे पास सेवा के लिए भेज दे। मैं 1 माह तक भी कमरे में बंद रह सकता हूँ। पूनम मेरी तन्हाई की बेहतरीन रफ़ीका साबित हो सकती है, क्योंकि वह बड़ी गर्मजोश, हसीन और कशिश के खजानों से भरा हुआ जिस्म है। लेकिन मैं खामोश रहा। वो खुद इस बात पर नाराज़ होकर चली गई। ये कम वक्त वीटर नाम मौजूद होता तो मैं उसे प्यार और मोहब्बत से मना लेता, और उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा था कि मैं उसका ज़हन पढ़ लूँ, ताकि ये तो मालूम हो सके कि वो कहाँ गई है। अगर मैं उससे पूनम की ख्वाहिश ज़ाहिर करता तो शायद वो इनकार ना करता, लेकिन मैंने ये बात कहना मुनासिब ना समझा। मैं अपने आप को हल्का साबित करना नहीं चाहता था, और यूँ भी मेरे पास कहीं आने जाने के कोई प्रोग्राम नहीं थे। मैंने जवाब दिया कि मैं यूँ भी सोने और आराम करने आया हूँ। बम्बई शहर में कौन कहाँ, चेन्नई में सुकून भी है, हुस्न शबाब भी, और दिल वाबस्तगी का सामान बहुत है। इतना कहकर मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लहजा के लिए मैं ठठक कर रुक गया, क्योंकि मेरी निगाह अजीत पर पड़ी और उससे मेरी निगाहें चार हुईं। वो मुझे गज़बनाक नज़रों से देख रहा था, इसलिए मैंने उसे ज़ोरदार सबक जो दिया हुआ था, मेरा दिया हुआ सबक वो भूल नहीं सकता था, और मुझे देखते ही उसे याद आ गया था, इसलिए वह मुझे घूर रहा था।